ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کہاں ہو تم؟ ابھی اور اسی وقت باہر آؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میر حیدر کی آواز سن کر وہ اندر تک خوف سے کانپ گئی۔ وہ اس وقت کمرے میں ہی موجود تھی، لیکن بیڈ کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ آج پھر اس سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ اس کی بہت بڑی سزا ملے گی۔ اسی لیے خوف کی وجہ سے وہ باہر ہی نہیں نکل رہی تھی۔ وہ اب اسے پورے کمرے میں تلاش کرنے لگا تھا۔ اچانک ہی اس کی نظر اس کے آنچل پر پڑی، جو بیڈ سے تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا۔ وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ بیڈ کے نیچے موجود ہے۔ اس نے مرہا کی بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے باہر کھینچا تو وہ چھوٹی سی لڑکی خوف کی وجہ سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اس کے لب کانپ رہے تھے، جبکہ چہرہ لال تھا۔ جب میں نے تمہیں ایک بار سمجھایا تھا کہ تم مردان خانے کی طرف قدم نہیں رکھو گی، تو پھر وہاں پر جانے کا کیا جواز بنتا تھا؟ مجھے بتاؤ، ورنہ ابھی اور اسی وقت تمہیں زندہ زمین کے اندر دفن کر دوں گا۔ وہ اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ مرہا کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے ہوئے کہنے لگی، خدا کے لیے حیدر سائیں، مجھے معاف کر دیں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھول گئی تھی۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، آج تمہیں تمہاری غلطی کی سزا دوں گا، تاکہ دوبارہ کبھی بھی یہ بات تمہارے ذہن سے نہ نکلے، اور تمہارا یہ چھوٹا سا ذہن ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ جس کام سے حیدر سائیں نے منع کیا ہے، اس کام سے منع ہو جانا تم پر فرض ہے۔ مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھے سزا نہ دیجیے گا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ وہ تھی بھی تو ایک چھوٹی سی بچی ہی، وہ محض 17 سال کی تھی، مگر اپنے بھائی کے جرم کی سزا خود کاٹ رہی تھی۔ کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی صورتحال سے گزرنا پڑے گا۔ اب مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تمہیں دوسرے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا کس قدر شوق ہے۔ نہیں حیدر سائیں، ایسی کوئی بات نہیں، خدا کی قسم لے لیں، میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی۔ اگر میں آپ کو سچ بتاؤں، مجھے وہاں پر سونیا بیگم نے بھیجا تھا۔ کافی دیر سے وہ خود پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر اس نے حیدر سائیں کو سچ نہیں بتایا تو وہ خود پر بہت بڑا ظلم کر بیٹھے گی۔ اب کی بار اس نے ایک جھٹکے سے اس چھوٹی سی لڑکی کی بازو چھوڑی، وہ زور سے زمین پر گر پڑی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ سونیا سائیں کا اس میں کیا کام؟ وہ حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات لے کر اس سے پوچھنے لگا۔ حیدر صاحب، وہی کرتی ہوں جو کرنے کے لیے وہ مجھے کہتی ہیں۔ وہ اپنا سر جھکائے ایک مجرم کی طرح اپنے گناہوں کو قبول کر رہی تھی۔ اور تم اس کی بات ماننے کے لیے راضی بھی ہو جاتی ہو؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو اٹھا کر باہر پھینک دے۔ میرے پاس اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ اگر میں ان کی بات نہ مانوں تو وہ مجھے مارتی ہیں۔ اس نے جلدی سے اپنے بازو سے کپڑا ہٹایا اور اسے اپنا جلا ہوا بازو دکھاتے کہنے لگی، یہ دیکھیں نا حیدر سائیں، کل بھی انہوں نے میرا بازو جو جلایا تھا۔ انہوں نے مجھے چائے بنانے کے لیے کہا تھا، لیکن چائے میں چینی تھوڑی سی کم ہو گئی تھی۔ اس کی سزا انہوں نے مجھے یہ دی۔ وہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اس کی اتنی جرت کہ وہ میری بیوی کو ہاتھ لگائے۔ تم تو ابھی اور اسی وقت اٹھو اور میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ میں جا کر اس عورت سے پوچھتا ہوں۔ وہ اسے پاؤں سے ٹھوکر مار کر اندر کی جانے کی تلقین کر کے خود بھی وہاں سے نکل گیا، جبکہ وہ اپنا بکھرا ہوا وجود سمیٹتے ہوئے بڑی مشکل سے چلتی اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتی، کسی نے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر شہریار کھڑا تھا۔ دیکھو تو کیا حالت ہو گئی تمہاری، اتنی خوبصورت اور اتنی کم عمر لڑکی پر کون اس طرح کا ظلم کرتا ہے؟ اگر تم میری بیوی ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ کیسے اپنی بیوی سے محبت کی جاتی ہے، لیکن اگر تم مجھے موقع دو
तो मैं अभी भी तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वो इसकी आंखों में देखकर अजीब से अंदाज में ये बातें कर रहा था। मिरहा जो पहले ही बहुत डरी हुई थी, शहरयार साईं की बातें सुनकर मजीद खौफजदा हो गई और तेजी से नफी में सिर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं, प्लीज नहीं, आप यहां से चले जाएं। अगर हैदर साईं ने देख लिया तो वो गुस्सा करेंगे। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे हैदर साईं के पास गुस्सा करने के अलावा और कोई काम है? हरगिज नहीं, और तुम बेचारी उसकी अताब का निशाना बन जाती हो। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरे भाई की गलती शामिल थी। उसने निगाहें झुकाते हुए जैसे अपने गुनाह का इतराफ करना चाहा। तो यही तो मैं भी तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो जुल्म तुम्हारे ऊपर हो रहा है, ये जुल्म तुम्हारे भाई पर होना चाहिए था, मगर उसने तो तुम दोनों को ही तकलीफ पहुंचाई है। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मेरे भाई को क्या हुआ? मेरा भाई ठीक तो है? वो फिक्रमंदी से शहरयार से पूछने लगी तो उसकी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंसने लगा और उसकी आंखों में देखकर नफरत भरे अंदाज में बोला, तुम्हें क्या लगता था कि ये सरदार तुम्हारे भाई को यूं ही जिंदा छोड़ देंगे? तुम्हें क्या लगा था कि अगर तुम अपनी कुर्बानी दे दोगी तो तुम्हारा भाई बच जाएगा? ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी थी। तुम्हारे भाई को ये लोग जान से मार चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये लोग मुझसे वादा खिलाफी नहीं कर सकते। उन लोगों ने तो मुझसे वादा किया था कि ये लोग मेरे भाई को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि ये मेरे भाई की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे, क्योंकि मैंने अपने भाई की जगह ये सजा काटने का इरादा किया था। वो इस वक्त बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगी थी। हाँ, लेकिन हकीकत यही है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। बस यही बात बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था। ये कहकर वो वहां से जा चुका था, जबकि वो वहीं जमीन पर बैठ गई थी और ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी थी। वो जोर जोर से अपना सीना पीट रही थी। मारिया, जो कि हैदर साईं की सबसे छोटी बहन थी, उसे इस लड़की पर बहुत तरस आता था। वो तेजी से भागती हुई उसके पास गई और उसे अपने सीने से लगाते हुए कहने लगी, क्या हो गया मेरी गुड़िया, क्यों रो रही हो? तुम्हारे जालिम भाई ने मेरे भाई को मार दिया है। वो ये कहकर मजीद ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है। मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे शहरयार साईं ने इस बारे में बताया है। तुम उसकी बात पर यकीन कर रही हो जो एक नंबर का झूठा इंसान है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डरा रहा था। वो सिर्फ तुम्हारी जहनी हालत के साथ खेलना चाहता है। तुम क्यों हर किसी को मौका देती हो कि वो तुम्हें परेशान कर दे? चलो उठो, मैं तुम्हें कमरे में लेकर चलती हूं। मारिया की बातें सुनकर वो थोड़ी सी पुरसकून हो गई और मासूमियत से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, क्या मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ? वो बिल्कुल ठीक है। हाँ मेरी जान, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं हुआ। मारिया ने उसे निगाहें चुराते हुए कहा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर चली गई। वो लड़खड़ा कर चल रही थी। उससे कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। क्या हुआ है तुम्हें? तुम गिरी हो? नहीं, हैदर साईं ने टांग पर बेल्ट मारा था। मारिया ने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर ली। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका नरम दिल सरदार इतना जालिम हो सकता है। क्या वो सारी उम्र मुझसे इसी तरह नफरत करते रहेंगे? मारिया बाजी, मैं नहीं जानती। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मुझे तो उस पर भी यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि मेरा भाई तुम पर हाथ उठा सकता है। मेरा भाई तो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो तो एक बहुत अच्छा और नरम दिल इंसान था, मगर वो जालिम बन गया है। इस जालिम दुनिया ने उसे जालिम बना दिया। ये कहकर वो खुद आंसू बहाने लगी। इस हवेली में कोई भी शख्स खुश नहीं था। हर शख्स की अपनी तकलीफें थी। हर शख्स के अपने दुख थे जिसका बोझ लिए वो जिंदगी गुजार रहा था। हैदर साईं इस वक्त दादी जान के कमरे में मौजूद थे। सामने ही मारिया बैठी हुई थी जिसने अपनी गर्दन झुकाई हुई थी।
वो दादी जान से सवाल करते हुए कहने लगा। आप मुझे बताएं कि उसकी मजाल कैसे हुई कि उसने मेरी बीवी के बाजू को जलाया। क्या हो गया हैदर बेटा, कौन सा उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया? इससे पहले कि दादी जान मजीद कुछ कहती, वो ऊंची आवाज में चीखते हुए कहने लगा, उसने जुर्म नहीं, उसने गुनाह किया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये होती कौन है उसे हाथ लगाने वाली? उसकी इतनी औकात नहीं कि मेरी बीवी की तरफ नजर उठाकर भी देखे। इतने अरसे बाद पहली बार उसने इसे अपनी बीवी कहकर मुखातिब किया था। वो खुद नहीं जानता था कि वो क्या कह रहा है। ये देखकर रशीदा बेगम भी थोड़ी सी घबरा गई और उसे कहने लगी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम भूल गए हो कि वो वन्नी में आई हुई एक लड़की है। दादी जान, मैं नहीं भूला, बल्कि आप लोग ये बात भूल गए हैं कि वो मेरे निकाह में मौजूद है। मैं उसके साथ जैसा चाहे वैसा सलूक कर सकता हूं, लेकिन आप लोगों में से किसी को भी ये हक नहीं कि आप लोग उसे तकलीफ पहुंचाओ। और अगर आइंदा मुझे इस बारे में पता चला कि किसी ने उसे परेशान करने की कोशिश की है तो उसके साथ मैं खुद निपट लूंगा। और जहां तक आपकी उस पोती का सवाल है तो आप उसे भी अच्छे तरीके से समझा दें कि ये मेरे मामलात से दूर रहे। बेटा, ये तुम्हारी मंगेतर है और तुमने वादा किया था कि बहुत जल्द तुम इससे शादी कर लोगे। जी, मैंने ये वादा उस वक्त किया था जब मैं शादीशुदा नहीं था। अभी मेरी एक अदद बीवी मौजूद है। उसके होते हुए मैं किसी और औरत से निकाह नहीं कर सकता। और जहां तक इसका सवाल है तो मैं इसकी तरफ नजर उठाकर भी देखना पसंद नहीं करता। इसको अपनी जिंदगी में शामिल करना तो बहुत दूर की बात। मेरी बीवी बिलाशुबा इंतकाम में आई हुई एक औरत है, लेकिन मैं उसके किरदार से अच्छे तरीके से वाकिफ हूं। वो एक पाक दामन औरत है, वो एक आला किरदार की मालिक है, और सबसे बढ़कर ये कि वो वफादार है। जबकि सोनिया के बारे में मैं इस तरह की कोई बात नहीं कह सकता। माजी में उसने जितनी भी हरकतें की है उन सबको देखकर अंदाजा होता है कि ये जिसकी जिंदगी में जाएगी उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। अपनी बात मुकम्मल करके वो वहां से बाहर निकल चुका था। सोनिया तेजी से अपनी दादी के कदमों में जाकर बैठ गई और रोते हुए कहने लगी, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे हैदर साईं दिला देंगी। लड़की, तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम तो इस तरह की बातें कर रही हो जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई खिलौना है। और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। जो भूत इसके सर पर चढ़ा हुआ है बहुत जल्द मैं ये भूत उतार दूंगी। उसे क्या लगता है उसकी बीवी बहुत पाक दामन है? तो चलो अब उसकी इस गलत फहमी को ही सबसे पहले दूर करते हैं। ये कहकर वो मुस्कुराते हुए अपनी पोती की तरफ देखने लगी। उनकी बात के मफहूम को समझकर वो भी खुलकर मुस्कुरा दी थी। अरे दादी जान, आप तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक और शातिर हैं। ये कहकर दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगी थी। दूसरी तरफ जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसने मारिया को मिरहा के साथ बैठे पाया। गुड़िया, तुम यहां पर क्या कर रही हो? उसका लहजा ना चाहते हुए भी नरम हो गया था। अपनी बहन को जब भी वो देखता था तो उसके लहजे में प्यार समो जाता था। ये वो लम्हा होता था जब मिरहा शिद्दत से ये दुआ करती थी कि काश मुझसे ये कभी भी इंसान इस तरह से प्यार मोहब्बत से बात करे। काश मुझे भी कभी ये इंसान इसी तरह मुखातिब करे जिस तरह से ये अपनी बहन को मुखातिब करता है। काश इसके लहजे में वैसी नरमी हो जैसे अपनी बहन को देखते इसके लहजे में समो जाती है। भाईजान, मैंने आपसे जरूरी बातें करनी थी। मारिया भाई को देखकर तेजी से अपनी जगह पर खड़ी हुई। जी बेटा, आप बोलो, क्या बात करनी है? उसने एक नजर मिरहा को देखा जो अपनी निगाहें झुकाकर बैठ गई थी और बेड की चादर के साथ खेल रही थी। उसका वजूद इस वक्त भी कांप रहा था। यकीनन ये सर्दी की वजह से था, मगर वो नहीं जानता था कि ये एहसास से कमतरी की वजह से है। भाई, शहरयार के बारे में आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बातें करनी है जिसके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो क्या हम इस बारे में गुफ्तगू कर सकते हैं? अगर ये बात तुमने अलहदा से करनी है तो हम दूसरे कमरे में जा सकते हैं।
उसने एक नज़र मेहरा को देखते हुए कहा। अब की बार उसने भी अपनी पलकें उठाई थीं। तो क्या उसकी इतनी भी हैसियत नहीं थी कि उसका शौहर उसके सामने कोई बात कर सकता? नहीं, इस सब की जरूरत नहीं, मारिया ने तेजी से कहा। मैं देख रही हूं कि काफी दिनों से वो भाभी को हरासा करने की कोशिश कर रहा है। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? उसके माथे पर बल पड़ गए। भाई, मतलब साफ है कि वो भाभी को तंग करता है, इन्हें डराता है और धमकाता है। अक्सर इनका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। आज भी मैंने उसे भाभी के रास्ते में खड़े हुए देखा। भाभी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो उन्हें अपने पास से कहानियां बनाकर सुनाता है और उन्हें जहनी तकलीफ पहुंचाता है। हैदर साईं इस वक्त गुस्से से मिरहा को देख रहा था, क्योंकि उसने इस लड़की को पहले दिन समझाया था कि अगर मेरे अलावा कोई भी तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे तो तुमने सबसे पहले मुझे बताना है। मगर उसने ये बात भी छुपाई। मारिया बेटा, तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है कि मैंने उसका क्या हाल करना है। तुम चलो शाबाश, अपने कमरे में जाओ। उसे वहां से भेजने के बाद वो अपनी ज़ौजा मोहतरमा की तरफ मुतवज्जो हो गया। मिरहा उसे अपनी जानिब आते देखकर पीछे की तरफ खिसकने लगी, मगर एकदम ही उसने मिरहा की दोनों टांगें पकड़ी और उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से कहने लगा, तुम हर बार कोई ना कोई गलती कर देती हो, फिर जब मैं तुम पर जुल्म करता हूं तो तुम आंसू बहाती हो। अगर तुम पहले ही बाज आ जाया करो तो कभी तुम्हें मगरमच्छ के आंसू बहाने का मौका ना मिले। वो इस वक्त जोर जोर से चिल्ला रहा था, जबकि वो खौफ से अपनी आंखें बंद किए उससे माफिया मांग रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। मिरहा बेबी, आपसे हर बार गलती हो जाती है। न जाने वो कौन सा दिन होगा जब आप कोई काम बगैर कोई गलती किए करेंगी। आप मुझे माफ क्यों नहीं कर देते? आप अपनी तरफ से मेरा दिल साफ क्यों नहीं कर लेते? क्या हम नॉर्मल मियाँ बीवी की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकते? उसने मासूमियत से पूछा तो चंद लम्हों तक वो उसके चेहरे को देखता रहा और फिर वो ऊंची ऊंची आवाज में हंसते हुए कहने लगा, तुम आखिर कैसे ये सब कुछ सह सकती हो? तुम जानती नहीं हो कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरा पूरा वजूद नफरत से भर जाता है। तुम्हें देखता हूं तो तुम्हारे भाई का चेहरा मेरी नजरों के सामने घूमने लगता है। मैं कैसे किसी ऐसे इंसान की बहन के साथ नरमी इख्तियार कर सकता हूं जिसके भाई ने मेरे भाई को जान से मारा हो? तुम नहीं जानती कि मैं अपने भाई से कितनी मोहब्बत करता था। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैंने अपनी जिंदगी के कितने खूबसूरत लम्हात उसके साथ गुजारे हैं। और तुम इस बात से भी वाकिफ नहीं होगी कि मेरे भाई को जिंदा रहने का कितना शौक था। मेरा भाई हमेशा मेरे सामने अपनी इसी आरजू का जिक्र करता था। अक्सर वो रात को डर जाता था तो मेरे पास मेरे कमरे में आता था और मुझे कहता था, भाई मुझे एक लंबी जिंदगी गुजारनी है, मैंने अपने ख्वाबों को पूरा करना है। मगर तुम्हारे भाई ने उसे ये मौका नहीं दिया और उसे जान से ही मार दिया। तुम्हारे भाई ने ना सिर्फ मेरे भाई से उसकी खुशियां और उसकी जिंदगी छीनी है, बल्कि उसके साथ साथ उसने मेरे लबों से भी मुस्कुराहट छीन ली है। उसने मेरे अंदर मौजूद नरम दिल इंसान को भी मार दिया है। तुम्हें क्या लगता है मैं एक बहुत जालिम सरदार था? ऐसा कुछ भी नहीं मिरहा बेबी, मैं तो एक बहुत नरम दिल का मालिक था। मैंने तो कभी किसी चूंटी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। मगर जब से मेरे भाई के साथ वो वाकया पेश आया तब से मैं सख्त बन गया हूं। मुझे अंदाजा हो गया है कि इस मुआशरे में जिंदगी गुजारने के लिए अपने आप को सख्त बनाना बहुत जरूरी है। मगर मेरी जान, तुम फिक्र मत करो। जिस दिन तुम्हारा भाई मेरे हाथ लग गया उस दिन मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। उस दिन मैं तुमसे वादा करता हूं तुम पर कोई जुल्म नहीं करूंगा। मेरा भाई बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं। वो कमरे से बाहर निकलने ही लगा था कि उस लड़की की आवाज सुनकर चौंक गया। और ये वो लम्हा था जब उसका दिल खौफ से कांपा था और उसके जहन में ये ख्याल आया था कि अगर उसका भाई वाकई बेकसूर हुआ तब वो क्या करेगा? क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? उसने इस लड़की की आंखों में देखते हुए कहा तो वो अपने आंसू साफ करने लगी
और तेजी से नफी में सर हिलाते कहने लगी, नहीं, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं, मगर ये बात मैं यकीन से कर सकती हूं कि मेरा भाई बेकसूर है, क्योंकि जिस रात तुम्हारे भाई पर हमला हुआ था उस रात मेरा भाई यहां पर मौजूद नहीं था। वो किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। उस दिन मैं अपने घर में बाबा जान के साथ मौजूद थी जब तुम लोगों की हवेली की तरफ से हमें कॉल वसूल हुई, और आपके बाबा ने मेरे बाबा को धमकी देते हुए कहा कि अगर हमने अपना बेटा आपके हवाले ना किया तो वो हमारी पूरी नस्ल को मिटा देंगे। उस दिन मैं भी बहुत हैरान हुई थी कि मेरा भाई जो कि शहर में बैठा हुआ है वो कैसे आपके भाई को मार सकता है जो कि गांव में मौजूद है। मैंने अपने बाबा से भी बात की थी। उन्होंने मुझे बताया था कि दुश्मनों ने हमें फंसाने की कोशिश की है। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, उसने हाथ उठाकर मिरहा को खामोश रहने का इशारा किया और उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम सिर्फ और सिर्फ 17 साल की हो, जबकि मैं उम्र में तुमसे डबल हूं। तुम क्या समझती हो इस तरह की कहानियां सुनाकर तुम मुझे बेवकूफ़ बना लोगी? तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है। मैं इंसान को देखकर पहचान जाता हूं कि उसके जहन में क्या चल रहा है। फिर आप मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते हैदर साईं, क्योंकि अगर आप मुझे पहचानते होते तो आप मुझ पर इतना जुल्म न करते। वो नजरें झुकाते हुए बोली तो वो बेसाख्ता उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। आखिर इस लड़की में क्या था जो वो चाहते हुए भी उस पर जुल्म के पहाड़ नहीं तोड़ पा रहा था। लेटो, आराम करो, मैं जरूरी काम के सिलसिले में शहर जा रहा हूं। मैंने आपसे ही एक सवाल किया था, अगर मेरा भाई वाकई बेकसूर हुआ तब आप क्या करेंगे? उसने वही सवाल दोबारा से दोहराया। क्या मतलब है क्या करूंगा? वो नासमझी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। फिलहाल तो आप मुझ पर जुल्मों सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं और आप ये मानने के लिए भी तैयार नहीं कि आप गलत कर रहे हैं। आपका कहना है कि आप मुझे जो भी तकलीफ पहुंचा रहे हैं वो मेरे भाई की वजह से पहुंचा रहे हैं। मैं आपसे यही पूछना चाहती हूं कि अगर मेरा भाई बेकसूर निकला, उसकी कोई गलती ना हुई, तो मैं तुम्हारे कदमों में उस वक्त तक गिरकर तुमसे माफिया मांगता रहूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर दोगी। मैं हर वो काम करने के लिए तैयार हो जाऊंगा जो काम करने के लिए तुम मुझे कहोगी। लेकिन छोटी सी लड़की, इस सब के लिए भी तुम्हारे भाई का बेकसूर होना लाजमी है, जो कि मैं जानता हूं ऐसा कभी मुमकिन नहीं हो सकता। तो क्या आप मुझसे मोहब्बत करने लगेंगे? उसने बेसाख्ता पूछा था तो एक लम्हे के लिए वो खुद भी हैरान रह गया। थोड़ी देर तक वो उसकी आंखों में देखता रहा। पहली बार था जो हैदर साईं ने उससे अपनी नजरें चुराई थी। अपने इस छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर ना डालो, ये कहकर वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो इस लड़की को कैसे बताता कि मोहब्बत तो वो अब भी उससे करता है और बेतहाशा करता है। वो बेड से टेक लगाकर बैठ गई थी और अपने माजी के बारे में सोचने लगी थी। वो उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था जब उसने पहली बार हैदर साईं को देखा था और उसे पता चला था कि हैदर साईं उसके गांव का नया सरदार बनने वाला है। उसने हैदर साईं के बारे में बहुत सी बातें सुन रखी थी, जिसमें से एक ये भी थी कि वो गरीबों की मदद करता है, उनके साथ अच्छा सलूक करता है, बेवा औरतों की माशी हालत दुरुस्त करने के लिए उन्हें वजीफा देता है। इससे पहले कि उसका बड़ा भाई सरदार बना था, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं था। थोड़े अरसे के बाद वो शराब और नशे की लत में गिरफ्तार हो गया, जिसकी वजह से उसे सरदारी के मर्तबे से हटा दिया गया। इस बार जब हैदर साईं सरदार बना तो उसने अपने दोस्तों से उसके बारे में बहुत सी तारीफें सुनी थी। वो खुद जौहरी की बेटी थी और एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती थी, लेकिन वो सरदारों के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। दूसरी और अहम वजह यह भी थी कि चौधरी की सरदारों के साथ एक लंबे अरसे से लड़ाइयाँ चलती आ रही थी और ये लड़ाइयाँ ज़मीनों के सिलसिले में ही थी। सरदारों ने चौधरियों की कुछ ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ था और वो देने के लिए राज़ी भी नहीं हो रहे थे।
یہی وجہ تھی کہ اس کے بابا جان حیدر سائیں کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے گھر میں جب بھی ان لوگوں کا نام لیا جاتا تو نفرت سے ہی لیا جاتا تھا۔ اس کا اپنا بھائی بھی حیدر سائیں سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن وہی تھی جس نے اپنے دل میں اس انسان کو بسایا ہوا تھا۔ وہ صرف اور صرف اس کی ایک جھلک دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ جو انسان اس قدر اچھی نیت اور اس قدر اچھے کام کر سکتا ہے تو وہ دکھنے میں کیسا ہوگا۔ اس گاؤں میں صرف اور صرف ایک ہی اسکول تھا۔ یوں تو بہت کم لڑکیوں کو اسکول میں پڑھنے کی اجازت تھی، اور اس کا شمار بھی ان چند لڑکیوں میں سے ہی ہوتا تھا جو کہ اسکول میں جا کر تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اس نے اپنے بابا جان کو کہہ دیا تھا کہ اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے، پھر وہ بعد میں کالج میں بھی داخلہ لے گی۔ اس کے بابا کو اس سے مسئلہ نہیں تھا، چونکہ وہ اپنے گھر کی سب سے لاڈلی بیٹی تھی، اس لیے ہر کوئی اس کی خواہشات کو پورا کرتا تھا۔ وہ اپنے بھائیوں کی آنکھ کا تارا تھی۔ ایک دن اس نے اپنی دوست سے کہہ کر ٹیچر سے جلدی چھٹی لے لی۔ اس کے دوست نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے سرداروں کی حویلی لے کر جائے گی، چونکہ اس کی دوست کے بابا کے ان لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اور اس کی دوست ماریا کی فرینڈ بھی تھی۔ وہ تھوڑی سی پریشان ہو گئی اور سمیرا کو کہنے لگی، اگر سرداروں کو پتہ چل گیا کہ میں چودھریوں کے گھر سے آئی ہوں تو وہ کہیں مجھے جان سے ہی نہ مار دیں، اور ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے بدنام کر دیں۔ اس کی بات سن کر وہ اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، فکر مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور نہ ہی میں انہیں تمہارے بارے میں کچھ بتاؤں گی۔ تم بس میرے ساتھ چلو اور اپنی خواہش پوری کرو۔ وہ پرجوش ہو کر اس کے ساتھ حویلی کی طرف چل دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اندر داخل ہو گئی تھی۔ حیدر سائیں جو کہ 5 منٹ پہلے ہی جاگا تھا، اس کی آنکھیں نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے لال تھی، مگر ایک ضروری کام کے سلسلے میں اس نے شہر جانا تھا، اسی وجہ سے وہ جلدی جاگ گیا تھا۔ وہ جو اپنے دھیان میں چلتی جا رہی تھی، گیلری سے مڑی تو اچانک ہی اس کا سر کسی مضبوط چیز سے جا ٹکرایا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی، اس کے چہرے سے نقاب بھی اتر گیا تھا۔ وہ اس وقت زمین پر گری ہوئی تھی۔ حیدر کی بھی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں، اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ایک بہت ہی پیاری اور معصوم سی چھوٹی سی لڑکی تھی، حسن کا مجسمہ تھی۔ اسے ویسے تو کم عمر لڑکیاں بالکل اچھی نہیں لگتی تھیں، لیکن یہ وہ واحد لڑکی تھی جس نے اس کے دل پر دستک دی۔ محترمہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موٹی موٹی بٹنوں جیسی آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہیں، وہ شرارت آمیز لہجے میں کہنے لگا، تو اس کی بات سن کر وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنا نقاب ٹھیک کیا۔ آپ بہت خوبصورت ہیں اور نقاب کے بغیر زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ وہ ویسے تو کسی سے فلرٹ نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی اسے اس سب کی عادت تھی، بلکہ جو لوگ یہ سب کرتے تھے وہ انہیں برا سمجھتا تھا، مگر آج جانے انجانے میں وہ خود یہ ساری باتیں کر رہا تھا۔ کیا آپ سب لوگوں پر اسی طرح سے لائن مارتے ہیں؟ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کہنے لگا، نہیں، میں سب لوگوں کی تو اس طرح سے تعریف نہیں کرتا۔ آپ میں کچھ تو خاص بات ہے جو میں آپ کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں، اور میں یہ بات ماننے کے لیے تیار بھی ہوں۔ وہ پرسکون انداز میں بول پڑا۔ وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ وہ ایک ضروری کام کے سلسلے میں شہر جا رہا ہے۔ وہ اپنے دونوں بازو لپیٹ کر اب فرصت سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ جب اس کی نظر سمیرا پر پڑی تو اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، ارے گڑیا، اتنے عرصے بعد آئی ہو، خیریت تو ہے؟ جی، وہ میں ماریا سے ملنے آئی تھی، اور یہ میری دوست ہے، میں نے اسے ماریا سے ملوانا ہے۔ وہ مرہا کی طرف ایک نظر دیکھتے ہوئے بولی، یہ شاید حویلی میں پہلی بار آئی ہے۔ وہ اسے اپنی نظروں کے حصار میں لیتے باتیں کر رہا تھا۔ جی حیدر بھائی، ایسا ہی ہے۔ حیدر کا نام سن کر اب کی بار اس کی بے ساختہ نظریں اٹھا کر اس نے دیکھا۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں حیرت کی وجہ سے مزید کھل گئی تھیں۔ وہ اب شرم و حیا کو ایک سائڈ پر رکھے غور سے حیدر کی آنکھوں میں دیکھے چلی جا رہی تھی، اس بات سے مکمل طور پر انجان کہ اس کی دوست بھی اس کے قریب کھڑی ہے، اور سامنے کھڑا شخص
उसका कोई भी मतलब निकाल सकता है। क्या आप हैदर साईं हैं? उसने बेचैनी से पूछा। इसकी बात सुनकर हैदर ने हाँ में सर हिला दिया। वो खुद भी थोड़ा सा हैरान हुआ। मुझे आपसे मिलने का बहुत शौक था। मेरा नाम मिरहा है और मैं। इससे पहले कि वो जज्बात में आकर अपना तारुफ करवा जाती, सुमेरा ने उसके बाजू पर चुटकी काटी थी। वो दर्द के मारे बिलबिला उठी। लगता है आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही जानती हैं, वो उसकी आंखों में देखते हुए सवाल कर रहा था। अब की बार वो शर्म से अपनी पलकें झुका गईं। थोड़ी देर पहले तक वो इस इंसान को ठरकी समझ रही थी, लेकिन अब जब उसे पता चला कि ये वही हैदर है जिस पर वो दिलो जान से फिदा है, तो उसे इस इंसान की ठरक भी मोहब्बत लगने लगी। हैदर भाई, हम आपसे बाद में मिलते हैं, फिलहाल हमें जाना है। इससे पहले कि वो वहां से निकलती, हैदर ने सुमेरा को मुखातिब किया। तुम यहां से जाओ, मैंने इस लड़की से एक जरूरी बात करनी है, वो संजीदगी से बोला था। सुमेरा ने मायने खेज नजरों से अपनी दोस्त की तरफ देखा, जैसे कहना चाह रही हो, तुमने तो पहली ही नजर में इसे अपना दीवाना कर दिया। मैं आपके दुश्मनों की बेटी हरगिज नहीं हूं, वो जल्दी से बोल पड़ी। उसकी बात सुनकर एक लम्हे के लिए तो वो हैरान हो गया, फिर दूसरे लम्हे वो अपने लबों पर प्यारी सी मुस्कुराहट सजाते कहने लगा, अगर तुम मेरे दुश्मनों की बेटी भी हुई तब भी अपने दुश्मनों से दोस्ती कर लूंगा। वो हैरत से आंखें पटपटाते उसके चेहरे को देख रही थी। तुम पहले कहां पर थीं? तो मुझे पहले क्यों नजर नहीं आई? क्या मतलब आपकी इस बात का? खौफ और शर्म की वजह से उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। इससे पहले कि वो उसके मजीद करीब जाता, उसे बाहर से किसी के आने का एहसास हुआ। वो जल्दी से पीछे होकर खड़ा हो गया। वो कोई और नहीं बल्कि शहरयार था। और ये चौधरी की बेटी हमारी हवेली में क्या कर रही है? खैरियत तो है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चौधरियों ने अपनी कोई बात मनवाने के लिए तुम्हें यहां पर भेजा है? शहरयार की बात सुनकर वो अंदर तक खौफ से कांप गई थी। खौफ की वजह से उसने मजबूती से हैदर की बाजू पकड़ ली थी। हैदर ने बेसाख्ता नजरें उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा। दरअसल शहरयार उसे अच्छे तरीके से जानता था। एक दो बार पहले भी उसका इस खूबसूरत हसीना के साथ सामना हो चुका था। ये इस गांव की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की थी, जो किसी को भी अपना दीवाना कर लेने की सलाहियत रखती थी, और वो इसकी असलियत से भी वाकिफ था, क्योंकि एक लंबा अरसा वो इसका पीछा करता रहा था और उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश भी करता रहा था, मगर मिरहा ने कभी भी उसे लिफ्ट नहीं करवाई थी। शहरयार, अभी और इसी वक्त यहां से जाओ, हैदर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो वो खबासत भरे अंदाज में कहने लगा, क्यों, अकेले ही मजे करने का इरादा है? इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता, हैदर का हाथ उठा और उसके चेहरे पर निशान छोड़ गया। खुदा का शुक्र था कि वहां पर उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। वो हैदर की आंखों में देखकर नफरत भरे अंदाज में कहने लगा, बहुत जल्द आप लोगों से इसका हिसाब लूंगा। जबकि मिरहा की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। हैदर ने बहुत ही प्यार से उसके आंसू साफ किए। तुम्हें किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम मुझे बताओ कि तुम यहां क्यों आई हो? क्या वाकई तुम कोई मकसद लेकर आई थी? वो जोरों शोर से नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप मुझसे मेरे बाबा की कसम ले लें, मेरा कोई मकसद नहीं था, बल्कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको देखना चाहती थी। वो इतनी मासूम थी कि उसने अपने दिल का हाल भी खोलकर बयान कर दिया। क्या मतलब है इस बात का? हैदर ने अपनी मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश की, मगर उसका दिल इस कदर खुश था कि वो मुस्कुराहट छुपा नहीं पा रहा था। मुझे पता चला था कि आप गरीबों की बहुत मदद करते हैं और आप बहुत अच्छे इंसान हैं। इसी वजह से मैं आपको देखना चाहती थी, मैं आपसे मिलना चाहती थी। आप मुझसे मिलने में और मुझे देखने में कामयाब हो गई हैं। क्या आपके ख्यालात में कोई फर्क आया? वो उसे जान पूछकर तंग कर रहा था
और उसे इस लड़की से बातें करते मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि वो लड़की हद से ज़्यादा मासूम थी। आज से पहले उसका पाला कभी भी इस कदर मासूम लड़की से नहीं पड़ा था। मिरहा जोरों शोर से नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं, आप तो मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो क्या इस अच्छे इंसान को तुम अपनी ज़िंदगी में शामिल करना पसंद करोगी? वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा था। जो भी उसके दिलो दिमाग में होता वो सामने वाले शख्स के सामने बोल देता था। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। क्या मतलब है इस बात का? इसका साफ मतलब है जो आप अभी समझना नहीं चाहती, लेकिन बहुत जल्द आपके घर में आकर आपके घर वालों को समझाऊंगा। फिलहाल चले, मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूं। आपको पता चल गया है कि मैं चौधरियों की बेटी हूं। क्या आप मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे? अगर आप चाहें तो आप मेरे घर वालों को ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। उसने जैसे बहुत पते की बात की थी। उसकी बात सुनकर वो हंसने लगा और कहने लगा, नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम अपने घर में आए मेहमानों को इस्तेमाल नहीं करते और ना ही उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आप तो एक बहुत बड़ा मकसद लेकर हमारे घर आई थी, तो आपके साथ कैसे इतना बड़ा जुल्म कर सकता हूं? आप मुझे घर से थोड़े फासले पर ड्रॉप कर दें। अगर मेरे भाइयों ने देख लिया तो एक बहुत बड़ी कयामत आ जाएगी, उसने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। वो उसे घर से थोड़े ही फासले पर ड्रॉप करके वहां से जा चुका था। वो हंसते खेलते हुए अपने घर के अंदर दाखिल हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे जिस इंसान से मोहब्बत होगी वो इंसान इसकी जिंदगी में शामिल हो जाएगा। वो खुद को बहुत खुशकिस्मत तस्वुर कर रही थी। फारिया बेगम ने जब अपनी बेटी को मुस्कुराते हुए देखा तो बेसाख्ता पूछने लगी, खैरियत तो है? आज तो तुम्हारे लबों से मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही। ये मुस्कुराहट मामूल वाली मुस्कुराहट नहीं थी। इसी वजह से उन्हें शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। अरे नहीं अम्मी जान, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो अपने बाल कानों के पीछे अड़ाते हुए बोली। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी को सोचकर ये बात कह रही हो। फारिया बेगम उसकी तरह कम उम्र या नादान औरत नहीं थी, बल्कि वो अच्छी खासी समझदार थी। बेटी की हालत देखकर उन्हें किसी न किसी हालत तक अंदाजा तो हो चुका था। वो उसकी बाजू पकड़कर मजबूत लहजे में कहने लगी, मैं इस बात को यकीन से नहीं कह सकती कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन तुम्हें एक चीज समझा देना चाहती हूं। कभी भी किसी किस्म के फजूल ख्यालात को अपने जहन में लाने की कोशिश मत करना। तुम अच्छे से जानती हो कि तुम अपने भाइयों की इज्जत हो, अपने बाप का मान हो। कोई भी ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से तुम्हारे भाइयों या बाप की इज्जत पर कोई फर्क आए। अम्मी, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं कोई ऐसा काम कर सकती हूं? उसने बेचैनी से कहा तो वो उसे देखकर फीके से अंदाज में मुस्कुराने लगी। तुम्हारी आंखों में मैं मोहब्बत के दिए जलते देख रही हूं। मैं जानती हूं कि मोहब्बत बेख्तियार जज्बा है और ये इंसान को हो जाती है। इसमें इंसान का अपना कोई इख्तियार शामिल नहीं। मोहब्बत हो जाना लाइख्तियारी अमल है, लेकिन मोहब्बत होने के बाद इंसान जो काम करता है वो उसके अपने इख्तियार में होता है। तुमसे यही उम्मीद रखती हूं कि तुम अपने बाप और भाइयों की इज्जत को महफूज रखोगी। ये कहकर वो खामोशी से कमरे में चली गई थी। उनकी बातें मिरहा को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गई। पूरी रात ही वो इसी बारे में सोचती रही थी और उसे इस बात का भी अंदाजा हो रहा था कि उसने अपने घर वालों से छुपकर जो कुछ भी किया है वो गलत किया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अगर उसके घर वालों को इस बारे में पता चल गया तो वो इससे नफरत करने लगेंगे। अपनी बेटी पर उन्हें जो यकीन है वो खत्म हो जाएगा। हैदर साई ने उसे कुछ दिनों के बाद नदी किनारे मिलने के लिए बुलाया था। उसने खुद को 1000 बार समझाया था कि वो वहां पर नहीं जाएगी, लेकिन जब वो दिन आया और जब वो वक्त आया तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाई। जब वो नदी किनारे पहुंची तो वो पहले ही वहां पर मौजूद था और घास पर लेटा हुआ था। अगर कोई सरदार को इस तरह जमीन पर लेटे देख लेता तो वो यकीनन हैरत से बेहोश हो जाता। वो उसे कभी भी इस जगह पर नहीं बुलाना चाहता था,
मगर इस बारे में पहले मिरहा ने ही बात की थी, क्योंकि ये जगह गांव से थोड़ी दूर थी और यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि गांव का कोई शख्स उसे इस इंसान के साथ देख ले, और हैदर के लिए भी सबसे अहम चीज इस छोटी सी लड़की की इज्जत थी। तुम्हें पता है ये 2 दिन मैंने कितनी मुश्किल से गुजारे हैं, उसने जज्बात से चूर लहजे में कहा। तो इसकी बात सुनकर मिरहा भी अपनी पलकें झुका गई और कहने लगी, आप सोच नहीं सकते कि मैंने ये 2 दिन कितने तकलीफ से काटे हैं। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया? वो फौरन से संजीदा हो गया था। नहीं, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया, मगर मेरा अपना ज़मीर मुझे एक लम्हे के लिए भी चैन का सांस लेने नहीं दे रहा। मैं अपने घर वालों से छुप कर ये काम कर रही हूँ। मेरे भाइयों को पता नहीं है कि मैं इस वक्त एक मर्द के साथ बैठी हूँ, और वो मर्द भी जो उनका दुश्मन है। अगर तुम कहो तो मैं कल ही तुम्हारे घर रिश्ता लेकर पहुंच जाऊंगा। मैंने अपनी अम्मी से सरसरी तस्करा किया था। अम्मा ने बताया है कि मेरे बाबा आप लोगों से शदीद नफरत करते हैं। वो आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। मुझे नहीं लगता कि ये ताल्लुक अब ज्यादा अरसे तक चल पाएगा। बेहतर यही है कि यहां पर ही रुक जाए। मैं नरम दिल इंसान जरूर हूं, लेकिन अपनी मोहब्बत के मामले में मैं किसी भी किस्म का समझौता नहीं कर सकता। मैंने पहले तो कभी किसी औरत की ज़ात में दिलचस्पी नहीं ली। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली वो वाहिद लड़की हो जिससे मैं मोहब्बत करने लगा हूं। फिलहाल तो तुम छोटी हो। जब तुम 18 साल की हो जाओगी तब तुम्हारे घर बारात लाऊंगा और तुम्हें अपनी बीवी बनाकर ले जाऊंगा। मैं देखूंगा कौन मुझे रोकता है। और जहां तक तुम्हारे बाबा की नफरत का सवाल है तो फिक्र मत करो, बहुत जल्द वो मुझसे प्यार करने लगेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके बाबा के साथ ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं? वो पुरजोश अंदाज में उसका बाजू पकड़ते कहने लगी। ऐसा हो सकता है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। उस दिन वो काफी देर तक एक दूसरे से बैठकर बातें करते रहे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो 2 लोग जो एक दूसरे से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। बहुत जल्द उनमें से एक शख्स दूसरे से शदीद नफरत करने लगेगा या फिर नफरत करने का ड्रामा करेगा। उसी रात हैदर साईं के छोटे भाई को किसी ने जान से मार दिया और इल्जाम मिरहा के भाई पर आया था, जो कि उस वक्त शहर में मौजूद था। मिरहा के बाबा को अंदाजा हो गया था कि उन लोगों को फंसाने की कोशिश की गई है। इसी वजह से उन्होंने अपने बेटे को कह दिया था कि जब तक मैं ना कहूं तुमने गांव वापस नहीं आना, तब तक मैं उस इंसान के बारे में पता लगाने की कोशिश करूंगा जिसने हमारे खिलाफ चाल चली है। दूसरी तरफ जब मीर हैदर साईं को इस बारे में पता चला तो उसने सारा गांव सर पर उठा लिया। आज से पहले वो कभी भी इस कदर दहशतनाक नहीं हुआ था, मगर उस दिन लोग उसे देखकर खौफजदा हो रहे थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि ये इंसान अपने अंदर इतना गुस्सा रख कर बैठा है। वो तो उसे एक नरम दिल इंसान समझते थे, मगर वो ये बात भी तो नज़रअंदाज कर रहे थे कि इस बात ने उसके दिल पर वार किया था। उसके जिगर के टुकड़े को उससे अलग किया गया था। वो अपने भाई से बेतहाशा मोहब्बत करता था। अगर ये कहा जाए कि उसने अपने भाई की परवरिश की थी तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। उसने चौधरियों के सामने ये मुतालबा रखा था कि वो लड़का उनके हवाले कर दिया जाए, मगर मिरहा के बाबा ये सब मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके बेटे का कोई कसूर नहीं और मजबूरन उनकी बेटी को ही कुर्बानी देनी पड़नी थी। वो वनी होकर हैदर साईं के घर पहुंच चुकी थी। वो इस वक्त उसके कमरे में बैठी हुई थी, क्योंकि हैदर साईं सब लोगों को सख्ती से मना कर रहे थे कि कोई भी उसके आस पास नहीं जाएगा और ना ही मेरी इजाज़त के बगैर कोई उसे हाथ लगाएगा। वो समझ रही थी शायद हैदर साईं उस बार इस पर रहम करेंगे और उसे माफ़ कर देंगे, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक दिन देखने को मिलेगा। जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। सामने ही वो छोटी सी लड़की बैठी थी जिससे दिन के वक्त तो वो शदीद मोहब्बत करता था,
लेकिन अभी उसे ये पता था कि ये लड़की उसके सबसे बड़े दुश्मन की बहन है। वो तेजी से चलता हुआ उसके पास गया और उसे बालों से पकड़कर झटके देते कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मोहब्बत में मैं मजबूर होकर तुम्हें माफ कर दूंगा और तुमसे उल्फत का इजहार करूंगा? ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुमसे किसी ज़माने में मोहब्बत करता था, लेकिन वो मोहब्बत इस वक्त ख़त्म हो गई थी जब मुझे पता चला कि तुम मेरे भाई के कातिल की बहन हो। वो खुद को छुड़वाने की कोशिशों में हलकान हो रही थी, लेकिन इस जालिम इंसान की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। अब उसकी आंखों में मोहब्बत के दिए नहीं चमक रहे थे, बल्कि वहां पर तो वहशत फैली हुई थी। वो ज्यादा देर तक उसकी आंखों में नहीं देख पाई। वो उससे माफिया मांग रही थी, उसके पांव पड़ने के लिए तैयार थी। वो उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कह रही थी, खुदा के लिए मेरे जहन में तुम्हारी जो तस्वीर बनी है उसे ख़त्म ना करो। खुदा के लिए मुझ पर वो जुल्म मत करो कि जिसके बाद मुझे तुमसे नफरत हो जाए। मगर हैदर साई ने इस बार उसकी कोई बात नहीं सुनी। वो खुद वहशत का मारा इंसान था। उसे खुद किसी जगह पर पनाह चाहिए थी, और फिर उसने अपनी सारी वहशत इस लड़की के अंदर उतार दी, ये सोचे समझे बगैर कि वो लड़की खुद एक बेबस और मासूम जान है। सुबह जब वो सोकर उठा तो रात के वाकयात उसकी नज़रों के सामने घूमने लगे। उसे अंदाज़ा था कि उसने ज़्यादती की है, मगर वो ये मानने को भी तैयार नहीं था। उस दिन के बाद से मिरहा की ज़िंदगी तो जैसे जहन्नुम बन गई। ज़रा ज़रा सी बात पर उसे सज़ा दी जाती, उसे जलील किया जाता। बार बार उसके भाई का नाम लेकर उसे गालियां दी जाती थीं। शुरू शुरू में वो एहतजाज करती थी तो वो उसे अजीबो गरीब किस्म की सज़ाएं देता। कभी सारी रात के लिए वो उसे कमरे से बाहर निकाल कर लॉन में खड़ा कर देता, तो कभी पूरी हवेली की सफाइयां करवाता। और आज इतने अरसे बाद जब मिरहा ने उसे ये सवाल किया कि अगर मेरा भाई बेकसूर हुआ तब तुम क्या करोगे, तो वो वाकई बहुत सहम गया था। दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे। उसके बाद उसने मिरहा पर हाथ नहीं उठाया था। वो खुद नहीं जानता था कि इसकी क्या वजह है, मगर एक दिन दोबारा से तूफान आ गया। जिससे वो भागने की कोशिश कर रहा था, वो सब कुछ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दादी जान ने मिरहा और शहरयार को एक ही कमरे में बंद करवा दिया था और उस पर इल्ज़ाम लगा दिया था। पहले तो वो कभी भी किसी के सामने अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाता था, मगर उस दिन उसने सब लोगों के सामने अपनी बीवी को मारा। अंदर से तो ये मानता था कि उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। इससे पहले कि वो उसे मजीद एक लात मारता, मारिया तेजी से भागती उसके पास गई और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, आप पागल तो नहीं हो गए? क्या भूल गए हैं कि ये आपकी बीवी किस कदर पाकीज़ा औरत है और ये कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। दादी जान ने इस पर इल्ज़ाम लगाया है। मैंने खुद दादी जान की बातें सुनी थी। दरअसल मारिया थोड़ी देर पहले ही सुमेरा के साथ घर से बाहर गई थी, मगर जब वो वापस आई तो उसे पता चला कि पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। अगर उसे पहले ही इस बारे में पता चल जाता तो वो यकीनन अपने भाई को हकीकत के बारे में बता देती, और ये उसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तरीन दिन था, क्योंकि उस दिन ये भी साबित हो गया था कि मिरहा का भाई बेकसूर है और इसके भाई को नुकसान पहुंचाने वाला खानदान मलिक खानदान है। वो तेजी से भागता हुआ मिरहा के पास गया, मगर मिरहा ने उसके हाथों को पीछे झटका और उसके मुंह पर थूकते हुए कहने लगी, मुझे तुमसे शदीद नफरत है, मुझसे दूर हो जाओ। सरदार के लिए ये बड़ी शर्मिंदगी का मुकाम था, मगर वो खामोशी से पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसे अपने सारे जुल्म याद आ रहे थे। उसे अंदाजा हो रहा था कि कैसे उसने इस लड़की पर जुल्म के पहाड़ तोड़े थे। इसे वो रात भी याद आ रही थी जब उसने उस मासूम लड़की को पूरी रात बारिश में खड़ा रखा था। अगले दिन वो बिल्कुल मौत के मुंह में पहुंच गई थी, मगर ऊपर वाले ने उसकी जिंदगी लिखी थी जिसकी वजह से वो बच गई, वरना इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसी शाम उसके बाबा उसे साथ लेकर चले गए। अपनी बेटी की हालत देखकर उनका दिल खून के आंसू रो रहा था। मिरहा किसी से कोई बातचीत नहीं कर रही थी।
وہ سارا دن اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی رہتی، کبھی کبھار آنسو بہانے لگتی اور اپنی ماں سے چیختے ہوئے پوچھتی تھی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اس نے مجھ پر یقین کیوں نہیں کیا، وہ کیسے یہ سوچ بیٹھا کہ میں اس کے حق میں ملاوٹ کروں گی۔ ایک دن وہ خود چودھریوں کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ جب اس نے اسے یہی بات کرتے سنا، وہ کسی سے اجازت لیے بغیر اس کے کمرے میں چلا گیا۔ فاریہ بیگم نے بھی باقی سب لوگوں کو روک دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کو صرف وہ انسان ہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر چلانے لگی تھی کہ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور آنسو بہانے لگا۔ اسے اپنے آنسو پاؤں پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ سردار اس کے قدموں میں بیٹھا رو رہا تھا اور اس سے معافیا مانگ رہا تھا۔ اس نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن حیدر نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ خود کو اسی قابل سمجھتا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، مجھے معاف کر دو، میں شرمندہ ہوں، وعدہ کرتا ہوں دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم پر جو بھی ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں ان سب کا مداوع کروں گا۔ میں کیا کرتا، میں خود اس وقت بہت تکلیف میں تھا۔ تمہیں نہیں پتا کہ میں اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتا تھا۔ آپ کو مجھ پر یقین تو کرنا چاہیے تھا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں تم پر یقین کرتا ہوں، میں تم پر یقین کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، لیکن اس دن نہ جانے کیوں میں پاگل ہو گیا۔ اب پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تم میرے ساتھ کب چلو گی؟ اس نے پوچھا تو وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی، مجھے پہلے تھوڑا وقت چاہیے اس سب کو قبول کرنے کا۔ تم جتنا وقت مانگو گی میں تمہیں دوں گا، لیکن آخرکار تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ بے حال وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ ان دنوں اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا وہ اس نے اپنے ہوش و حواس میں نہیں کیا، اس نے غصے میں آ کر کیا، اور ابھی اس نے تم سے معافی مانگی ہے تو اپنے پورے ہوش و حواس میں مانگی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ شرمندہ ہے۔ تم بھی تو اس سے محبت کرتی ہو۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تم بھی اسے معاف کر دو۔ اور پھر اس بار اس نے کمال ظرف کا مظاہرہ کیا اور اپنے محبوب کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد حیدر نے بھی ثابت کر دکھایا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی لڑکی ہے۔ اس کے سامنے اسے کچھ بھی عزیز نہیں۔ جہاں تک سونیا کا سوال تھا تو وہ اسے پہلے بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور اس نے اپنی دادی جان کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے کبھی بھی نکاح نہیں کرے گا۔ 1 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بہت ہی پیارے بیٹے سے نوازا، جس سے ان دونوں کی زندگی مکمل ہو گئی۔ اپنے بھائی کے قاتل کو تو اس نے سزا دلوا دی تھی، جس کی وجہ سے اس کا دل اب کسی حد تک پرسکون تھا، مگر اکثر اسے یاد آتی تھی تو وہ بہت بے چین ہو جاتا تھا۔ تب مرہا ہی اس کا سہارا بنتی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔